there is one more criteria for congruency of a triangle, which is angle side. When two triangles are congruent if two pair of angle and one pair of corresponding side, not the included side but the corresponding side, यानी कि अगर कोई दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ, एंगल ए is equal to angle D, angle B is equal to angle E, and the side DC is equals to EF, then these two triangle will be congruent by angle side, because the corresponding side is equal, not the including side, the given. But after when you have proved them as congruent triangles, then automatically AB will be equal to DE by CPCT. So I had already explained you till question number 4. Now let's come to question number 5, which is line L is perpendicular bisector of angle A. So the given data is angle QAB is equal to angle PAB. This is given to you, and BP and BQ are perpendicular. So angle AQB is equal to angle APB, each 90 degree. You have to show that triangle APB is congruent to triangle AQB. So what you will do, you will consider in triangle APB and triangle AQB. So in these two triangle AB is equal to AB. This is common. Then angle PAB is equal to angle QAB, which is given, and angle APB is equal to angle AQB. This is also given. Now see कि angle QAB is equal to angle PAB is equal to angle QAB and angle APB. The two angles are equal, and the corresponding side AB is not the line segment on which these two angles are given, but the two angles and the corresponding side is equal. So these two triangles will be congruent by angle side, and thus the side BP equal to BQ by CPCT. Now let's come to the next question. It is in figure 7.21, AC equal AE, AB equal AD, and angle BAD equal to angle EAC. These three data is provided to you, which you will write in the given section. You have to show that BC is equal to DE. BC is equal to D. You have to show this. So for this you will consider triangle ABC and triangle ADE. You will consider these two triangles. So in this AC is equal to AE, this is given to you. AB is equal to AD, this is also given to you. Achha, you are provided with angle BAD equal to angle EAC. अब आप ऑब्जर्व करो कि ट्राइंगल BAC में एंगल आ रहा है BAC, BAD में अगर मैं ऐड कर दूं एंगल DAC तो एंगल BAC आ जाएगा, एंड सिमिलरली एंगल EAC में इफ आई ऐड एंगल DAC तो देन इट विल गिव यू एंगल EAD. So angle BAD plus angle DAC will give you angle BAC, and angle EAC plus angle DAC will give you angle EAD. So with this what you get, two sides are equal, and plus the angle which is equal is
angle BAC is equal to angle EAD. So now the two sides are equal and one angle. You have to check whether it is the enclosed angle or not the enclosed angle. Obviously it is the enclosed angle. Why? Because AB and AC is what you are using, and the enclosed angle is angle BAC, which is equal to angle EAD. So these two triangles are congruent by side, angle, side. Now when they are congruent, then BC equal to DE by CBC. Now let's come to the next question. AB is a line segment and P is the midpoint. When P is the midpoint, the given data will be AP is equal to BP. D and E are the points on the same side of AB, such that another given data is angle BAD is equal to angle ABE, and another given data is angle EPA is equal to angle DPB. Okay, you have to show that triangle DAP is equal to triangle DAP is congruent to triangle EBP. So you will consider triangle DAP and triangle EBP. DAP and EBP. So what you are provided with, that AP is equal to BP. सबसे पहले आप यही लिख लो, AP is equals to BP, which is given. Then angle BAD is equal to angle ABE. अब आप इसी एंगल को ट्राइंगल DAP के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PBE, विच इज ऑल्सो गिवन, क्योंकि इट इज जस्ट अनदर नेम फॉर एंगल BAD. एंगल BAD को आप लिख सकते हो एंगल PAD, और एंगल ABE को यू कैन राइट एंगल PBE. तो दो एंगल इक्वल हो गए, एक साइड आपने इक्वल बता दिए AP इक्वल टू BP. अनदर एंगल विल बी EPA, इट इज इक्वल टू DPB. आपको EPA गिवन है DPB के इक्वल. आपने ट्राइंगल कंसिडर किया था कौन सा, ट्राइंगल APD, DAP और ट्राइंगल EBP. तो अगर एंगल इक्वल है, कौन से वाला, एंगल DAP इक्वल है एंगल एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB. अगर मैं एंगल EPA में ऐड कर दूं एंगल EPD, तो ये पूरा मिला के कौन सा एंगल बन जाएगा, एंगल APD. सिमिलरली अगर DPP एंगल में भी ऐड कर दिया जाए एंगल EPD, दोनों में ऐड करना है, तो ये कंप्लीट एंगल आपका बनेगा एंगल BPA. तो ये दोनों एंगल भी आपकी इक्वल हो गए, साइड इक्वल हो गई थी AP और BP. गिवन था आपका एंगल BAD, जिसको आप लिख सकते हो एंगल PAD, और ABE को आप लिख सकते हो एंगल PBE. ये दो एंगल आपकी इक्वल हो गए, APD और BPE इक्वल हो गया, और एंगल PAD और PBE इक्वल हो गया, और एक साइड AP इक्वल टू BP हो गई. तो अब ये आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए. चेक करो कि क्या जो दो एंगल हैं वो साथ में है और इंक्लूडेड साइड इक्वल हुई है या कॉरस्पॉन्डिंग. तो एंगल PAD को यूज़ किया था अपने प्रूफ में, और एंगल APD को, और साइड थी AP, तो इंक्लूडेड साइड इक्वल हुई है. तो अभी कॉन्ग्रुएंट किससे हुए, एंगल साइड एंगल से, ना कि एंगल साइड से. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया. देन AD इक्वल्स टू BE बाय CBC. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C. तो यानी कि एंगल BC
सी ए इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री. दिस इज गिवन टू यू. नेक्स्ट पॉइंट इज सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट डी. एम क्या है? मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज ए बी का. ए बी का मिड पॉइंट है, यानी कि बी एम इज इक्वल टू ए एम सिंस एम इज द मिड पॉइंट. अब उसके बाद है m is produced to a point d such that dm is equals to cm. Now you are provided with dm is equal to cm. You have to show that triangle AMC is congruent to triangle BMD. तो आप क्या कंसिडर करोगे? ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD. तो आप सबसे पहले डेटा क्या लिखोगे? BM AMC पहले कंसिडर किया तो AM को पहले लिखना. तो AM इज इक्वल टू BM एंड CM इज इक्वल टू DM. ध्यान से देखो, A कॉरस्पॉन्ड कर रहा है B को, इसलिए A के साथ ट्राइंगल में BMD में B का नाम पहले आया. और आप थर्ड चीज़ क्या लिखोगे? एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD. डू नॉट राइट एंगल DMB, BMB बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे हैव टू साइड्स इक्वल एंड वन एनक्लोज्ड एंगल इक्वल. तो आप क्या लिखोगे? इट इज कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड. Then you have to prove that DBC is a right angle. अब अच्छा देखो, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब एंगल एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM. By CPCT also they will be equal by alternate pair. They will form alternate angle pair with BD parallel to AC and BD parallel to AC and CD acting as transversal. So this will form an alternate angle pair. alternate angle का पेयर बना रहे हैं. तो अब अगर आपका कंप्लीट एंगल ये एंगल ACB और एंगल DBC क्या होगा? 180 डिग्री. कोइंटिड एंगल्स है, तो एंगल ACB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल DBC इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये कोइंटिड एंगल्स बना रहे हैं. अब ये तो 90 डिग्री है एंगल C, तो यहाँ से एंगल B कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा. एंगल B आपका 90, सो एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री. ऑल्टरनेट एंगल का पेयर बना दिया आपने AC और BD, ACM और BDM आपका CPCT से इक्वल है और ऑल्टरनेट का पेयर भी बना रहे हैं, इसलिए AC और BD आपके पैरेलल हो गए. अब ये लाइन पैरेलल हो गई है, इसी वजह से एंगल ACB और एंगल DBC जो हैं वो आपके किसके इक्वल आ गए? 180 डिग्री के. अब ऑलरेडी एंगल ACB तो 90 था, तो एंगल DBC भी कितना आ गया? 90 डिग्री. इसलिए ये प्रूव हो गया कि ये 90 डिग्री है. अब आ जाओ, यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB. ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB. देखो सबसे पहले तो DM इक्वल टू था CM, ठीक है. BC इक्वल टू हो गया BC सिंस दे आर कॉमन साइड्स. DB इक्वल टू हो गया AC. डू नॉट यूज़ DM इक्वल टू CM, इसका कोई भी यूज़ आपको इसमें नहीं आएगा. आप यूज़ करो एक तो BC इक्वल टू BC कॉमन, फिर उसके बाद DB इक्वल टू AC बाय CPCT इक्वल हो गया. और एंगल आपने ट्राइंगल कंसिडर किया था पहले DBC, तो आप लिखोगे पहले एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, क्योंकि अभी आपने प्रूफ करा है ACB तो आपको ऑलरेडी गिवन था 90 डिग्री और DBC आपने प्रूफ किया है, तो ईच क्या हो गया? ये 90 डिग्री. अब दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया, किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया? ये साइड एंगल साइड से, ठीक है. नाउ यू हैव टू प्रूव दैट CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB. नेक्स्ट प्रूफ में देखो DC
ट्राइंगल क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है DBC और ACB, तो DC विल बी इक्वल टू होगा AB बाई CPCT। अच्छा देखो BM इक्वल टू था AM और DM इक्वल टू था CM के, इन दोनों का सम करके क्या आएगा, BM और AM का AB और DM और CM का सम करके आएगा DC। तो इसलिए ये चारों की चारों साइड्स क्या हो गई आपकी, इक्वल हो गई। DM इक्वल टू CM एंड BM इक्वल टू AM, ये दोनों इक्वेशन आपकी क्या हो गई, इक्वल, क्योंकि M इनका मिड पॉइंट है, दोनों हाफ हाफ में कटेड है, M मिड पॉइंट है, इसलिए इनका सम क्या हो गया, इक्वल, और इसलिए सारी साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। सो DM प्लस CM इज इक्वल टू BM प्लस AM। दोबारा समझो इस चीज़ को, BM और AM ऑलरेडी इक्वल गिवन था क्योंकि M मिड पॉइंट था, DM और CM भी गिवन था। अब थर्ड पार्ट में हमने प्रूफ किया है ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, इसकी वजह से AB इक्वल टू हो गया CD। AB कैसे आया होगा, BM प्लस AM से, और CD कैसे आया होगा, CM प्लस DM से। अब क्योंकि M भी इसका भी मिड पॉइंट है और M इसका भी मिड पॉइंट है, इसलिए BM इक्वल टू AM इक्वल टू CM इक्वल टू DM हुआ। ठीक है, अब BM प्लस AM मिला के क्या बना रहे हैं, AB। DM और CM इक्वल थे, आप इसे क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ CM, तो इसी वजह से CM आपका क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ AB इक्वल टू आ जाएगा CM। इसके साथ आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सॉल्व दीज क्वेश्चंस, और आपको जो भी डाउट हो यू कैन पोस्ट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।